Hello children, today I will explain to you the following topics of chapter 6 of history. The chapter name is The Revolt of 1857 and its Aftermath. And the topics are Introduction, the second topic is Policies and the People. In this topic, I will explain to you the following points. First is loss of power for Nawabs, and the second point is failed negotiations of the ruling families, and the third topic is annexation of Awadh. In this topic, I will explain to you the following points. First is plans to end the Mughal dynasty. The second point, peasants and the sepoys. Third point, belief against savage and its impact. Next, responses to reforms. Fifth point, immediate cause. And the last point is mutiny to popular rebellion. Okay, let's start the chapter. The year 1857 has great importance in the history of India. This year saw the eruption of a major revolt in India which shocked the very foundations of the British rule in India. ये रिवॉल्ट जो है इसके प्रति देश के लोगों का डिससेटिस्फेक्शन क्यों हुआ था? क्योंकि वे लोग कंपनी रूल और उनके पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं थे. The policies which were followed by the British in India caused widespread discontentment and anger among the Indian masses. ये जो 100 साल ब्रिटिश लोग राज किए वे जो है उसमें बहुत सारे रिवॉल्ट हुए, उनका विरोध बहुत हुआ. आपको भी पता है, इन प्रीवियस चैप्टर आई एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द संथाल रिबेलियन, अबाउट द मुंडाज रिबेलियन. तो बहुत सारे रिवॉल्ट हुए थे, बट क्या है वो इतने स्प्रेड नहीं हुए थे क्योंकि वो लोकल बेस पर था और उसमें प्रॉपर लीडरशिप की कमी थी. इस कारण से वो रिवॉल्ट थोड़े समय बाद ही, वो सारे जितने भी रिवॉल्ट हुए थोड़े समय बाद ही वो खत्म हो गया था. But the revolt of 1857, which broke out in the summer of 1857, was a ferocious tornado which nearly swept away the so-called British Empire. Okay, the first topic is policies and the people. The reasons for the people to rescind the company's governance were many. बहुत सारे रीजन थे उनको हटाने के लिए, जो कोशिश हो रही थी उनके ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाने के, उसके बहुत सारे रीजन थे. फर्स्ट इज लॉस ऑफ पावर फॉर नवाब. Since the mid-18th century, the power of Nawabs and Rajas had been steadily eroding. The authority, honor, and dignity which they earlier commanded were being gradually waned away. और ब्रिटिश लोग क्या किए, उनके तो अधिकार ले ही लिए थे. इसके अलावा उनके कोर्ट में जो है अपने एम्प्लॉयर्स को रखे और इंडियन रूलर के जो फ्रीडम है उनको कम कर दिए थे. Their armed forces were disbanded. The company also took away their revenues and territories in stages. आपको पता है रेवेन्यू किस तरीके से लेते थे, बहुत सारे रीजन थे, है ना, कि आप प्रॉपर रूल नहीं कर रहे हो, इसके कारण हम तुम्हारे शासन को लेंगे, और सो मैनी, और उनके टेरिटरीज को भी ले लेते थे क्योंकि अच्छी तरह से तुम सब्सिडरी ट्रीटी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना. ये सारे रीजन थे जिसके कारण उनके इंडियन रूलर्स के कोई ना कोई रीजन बताकर, कोई ना कोई ट्रीटी बनाकर उनके पावर और उनके जो है रीजन को ले लेते थे. Failed negotiations of the ruling families. Many ruling families of different states and kingdoms tried to negotiate with the company to protect their interests but failed.
उसमें एक बड़ा एग्जाम्पल क्या था, रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जो थे अपने हस्बैंड के डेथ के बाद जो है उनके कोई बच्चे जो हुए तो वो खत्म हो गए थे, तो एक बेटे को अडॉप्ट किए थे। तो वो चाहते थे कि उनके बाद उनका बेटा रूल करे, पर ब्रिटिशर्स ने उसका विरोध किया, जिसके कारण आपको पता है उनका वार हुआ था। उसी तरह जो था नाना साहेब, who was the adopted son of Peshwa Bajirao II, wanted his father's pension when the Peshwa died. But the company, as always, supremely assured and confident about its power and turned down such request. उनके रिक्वेस्ट को नहीं माने। जब जो पेशवा बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन कौन थे, नाना साहेब थे, तो उन्होंने अपने फादर के बाद उनके पेंशन के हकदार थे, पर कंपनी जो कि अब सुप्रीम पावर थे उन्होंने उनके बात को मानने से एज यूजुअल मना कर दिए। फिर है एनेक्सेशन ऑफ अवध। A subsidiary alliance was imposed on Awadh in 1801 and it was annexed in 1856. आपको पता है जो प्लासी का युद्ध हुआ था, सिराजुद्दौला, already I explained in chapter 2. The reason given for the same was the supposed misrule and misgovernance of the Nawab. First point, plans to end the Mughal dynasty. The company was also working on a plan to bring the Mughal dynasty to an end. The company was also working on a plan to bring the Mughal dynasty to an end. वो लोग कोशिश कर रहे थे कि मुगल डायनेस्टी खत्म हो। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किए, जो मुगल राजा के किंग के जो कॉइन्स है उनमें से मुगल किंग्स के नाम और उनके जो भी सिंबल थे उनको हटाया गया। उनके स्थान पर क्या किया गया, ब्रिटिश अंपायर का पूरा सिंबल लगाया गया। In 1849, Governor General Dalhousie declared that after the death of Bahadur Shah Zafar I, his family would be shifted out of the Red Fort. और उनको कहाँ शिफ्ट करें, किसी दूसरे जगह में, दिल्ली में किसी दूसरे जगह रहने के लिए देंगे। In 1856, Governor General Canning declared that Bahadur Shah Zafar II would be the last Mughal king. और उनके खत्म होने के बाद उनके बच्चों को, जो कि पहले चले आ रहा है वो नहीं होगा, उनके बच्चों को किंग नहीं माना जाएगा। Second point is peasants and the sepoys. The peasants were not happy with the high taxes and the strict methods of revenue collection. तो उन लोग का टैक्स कलेक्शन सिस्टम ब्रिटिशर्स का काफी हाई था और बहुत स्ट्रिक्ट था। तो बहुत सारे सिस्टम लगाए थे, आपको पता है, महलवारी सिस्टम, रौतवारी सिस्टम, ये बहुत सारे सिस्टम थे, तो काफी स्ट्रिक्ट थे। तो इससे क्या हुआ, उन लोग टैक्स जो है पीजेंट्स लोग ठीक प्रकार से नहीं चुका पा रहे थे और बल्कि जनरेशन बाय जनरेशन उन पर टैक्स की रकम बढ़ती जा रही थी। The Indian sepoys were not happy about their salaries. जो इंडियन जो सोल्जर्स थे उन लोग अपने सैलरीज से खुश नहीं थे और उनको अलाउंसेस जो मिलते थे उससे भी खुश नहीं थे और उनका सर्विस का कंडीशन भी काफी खराब था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सोल्जर को रैंक हाई दिया जाता था, इंडियन सोल्जर्स का रैंक काफी कम था, तो नीचा था, जबकि काम जो था इक्वल था, बल्कि इंडियन सोल्जर ज्यादा काम करते थे। Some of the new rules violated their religious sensibilities and beliefs. उसमें से कौन सा था, तिलक। इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटिश ट्रूप में जब लोग ज्वाइन किए थे उन लोग को तिलक लगाना अलाउ नहीं था। उसी तरह उन लोग जो पगड़ी पहनते थे वो भी अलाउ करना हटा दिए थे। नेक्स्ट टॉपिक इज बिलीफ अगेंस्ट सीवेज एंड इट्स इम्पैक्ट।
The Hindus believed that crossing the sea or Kala Pani would mean that they would lose their caste and religion. काला पानी का मतलब क्या था कि उधर ब्लैक वाटर कहाँ, वो अंडमान निकोबार, जहाँ मतलब उसे पानी उनको सजा मिलती थी. According to it, crossing the seas caused the loss of वंश स्टेटस. उनका वंश से उन लोग हट जाएंगे. In 1824, when the sepoys were told to go to Burma by sea route, they refused to follow the order. हालांकि उन लोग लैंड रूट से जाने को तैयार थे और इसके लिए जब उन लोग रिफ्यूज किए तो उन लोग को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिला. To counter this happening again, a new law was passed in 1856 which made it mandatory for a sepoy to agree to serve overseas if required. Besides, most of the sepoys were from rural background and had families living in the villages. बहुत सारे उन लोग को तो जाना कंपलसरी कर दिया ना 1856 में. नहीं, तुमको जाना ही पड़ेगा, जरूरत पड़ने पर उस पार देश के उस पार दूसरे देश में जाना पड़ेगा और अपने काम करना पड़ेगा. तो बहुत सारे जो सिपाहीज थे उन लोग के फैमिली जो क्या थे, उन लोग गांव में थे और उनका रूरल बैकग्राउंड था. So they also reacted to what was happening in the countryside. Responses to reforms. The British took several steps to reform the society. उनमें से एक क्या था? सती प्रथा. सती प्रथा को बैन करने में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक का बहुत बड़ा हाथ था और राजा राममोहन राय इसके लिए शुरुआत किए थे और किसके लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहायता से सती प्रथा को हटाया था. पर उस समय ये प्रैक्टिस था तो इसको बैन कर दिया गया था. और एक क्या था? विडो मैरिज. तो वो होना जरूरी है, वो विडो मैरिज कर सकते हैं. तो ये जो इंडियंस जो है उनके बिलीफ्स को हर्ट कर रहा था. The company officially and aggressively promote the English language. After 1830, Christian missionaries were allowed to function freely and they could even own land and property. In 1850, a new law allowed an Indian. और न्यू लॉ क्या था कि जो कोई भी क्रिश्चियनिटी को एडॉप्ट करेंगे उनको अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी में पूरी तरह से अधिकार होगा. And this law made it easier to convert to Christianity. इससे कई इंडियंस क्या है वो क्रिश्चियन धर्म को लेना चालू कर दिए थे. A feeling steadily grew among Indians that the British were trying to destroy their religion, social customs, and traditional way of life. हालांकि उनमें से कुछ दूसरे भी थे जो कि ये जो सोशल एविल्स हो रहा था उनका विरोध भी कर रहे थे, जैसे रिफॉर्मर्स लोग, इंडियन रिफॉर्मर्स लोग. Next topic is point immediate cause. By 1857, the whole country was seething with anger and just needed a spark to set off the revolt. और ये स्पार्क कौन सा था? न्यू एनफील्ड राइफल, जो कि ब्रिटिश आर्मी द्वारा 1857 में लाया गया था. और इसमें आइट्रन कार्ट्रेज के ऊपर जो है ग्रीस लगा था और इसे ये बिलीव किया गया था कि इस पर जो है गाय के मांस की चर्बी है, गाय और पिग के. तो ये तो इंडियन बिलीव्स के खिलाफ था क्योंकि इंडियंस के अनुसार जो है गाय को भगवान माना जाता है. तो ये इंडियन कस्टम के विरोध था. So the sepoys were angered, believing that the British were deliberately using the cartridge to defile the religion of both the Hindus and the Muslims.
तो इसके कारण सोल्जर्स ने ऐसे कार्ट्रिज को यूज करने से मना कर दिए। Mutiny to popular rebellion. At the beginning of 1857, a very large number of people began to believe that British were up to no good and had to be resisted at all cost. These people had no central authority to guide or lead them, yet they had the gumption to organize, communicate, take initiative, and display the confidence to take on such a powerful enemy. The mutiny, which started from the cantonment in Meerut, engulfed a large part of northern and central India. इस रिवेलियन में केवल गरीब नहीं, केवल आदिवासी नहीं, समाज के सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिए थे। बहुत सारे हिस्टोरियन ये मानते हैं कि ये जो 1857 का ये फर्स्ट जो विरोध रिवेलियन जो है वो जो था, ये फर्स्ट जो है बिगेस्ट आर्म रेसिस्टेंट माने अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म के। मंगल पांडे was a young soldier at the cantonment in बैरकपुर और उनको एक्यूज किया गया क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश सीनियर ऑफिसर को अटैक किए थे। फॉर दिस एक्ट ऑफ insubordination, he was hanged to death on 29th March 1857। उनको बोला गया था कि राइफल के कार्ट्रिज को खोलने, उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिए थे, तो ये तो डिसओबे हुआ। इसके कारण से उनको पकड़ा गया और उनको सोल्जर आर्मी के सामने ही उनको मार डाला गया, उनको पर गोली मार दिया गया था। और कब खत्म हुए? 29 मार्च 1857 में। Within a few days, some sepoys of the regiment at Meerut refused to use the new cartridges during an army drill. और ये रूमर उड़ा था कि उसके जो कोट है, कार्ट्रिज के कोट है, वो काऊ और पिग से के फैट से बना हुआ है। For their refusal to obey the orders, 85 sepoys were dismissed from service and were sentenced to 10 years in jail. और ये इंसिडेंट कब हुआ था? 9 मई 1857 में। The other soldiers in Meerut responded to this incident in an extraordinary manner. On 10th May, the soldiers marched to the jail and released the imprisoned sepoys। तो ये जो है इससे दूसरे sepoys पर बहुत असर पड़ा, क्योंकि उन लोग को जैसे ही तो दूसरे सोल्जर ने ब्रिटिश के ऑर्डर मानने के लिए मना कर दिया कि हम यूज नहीं करेंगे ऐसे कार्ट्रिज, तो उनको सर्विस से हटा दिया गया और उनको 10 साल के लिए जेल की सजा दी गई। इससे दूसरे सोल्जर बहुत गुस्सा हो गए। वे लोग जो है इसका विरोध किए और बोले कि सोल्जर्स को जेल से रिलीज करो। Besides, they attacked and killed the British officer, capturing guns and ammunition in the process। वे लोग ये सिपाही लोग फिर क्या किए? वे बिल्डिंग्स पर और प्रॉपर्टीज, ब्रिटिश प्रॉपर्टीज पर फायर भी किए। After creating
में हम in Meerut, the soldiers rode on the night of 10th May and reached Delhi in the next morning. उधर से मेरठ में करने के बाद उन लोग 10th May में उन लोग दिल्ली में पहुंचे, सोल्जर्स लोग. On hearing of their arrival, other regiments which were stationed in Delhi also rose up in rebellion. सारे से ये सुनने के बाद दूसरे जो रिबेलियंस है उन लोग जो उधर बैठे हुए थे दिल्ली में उन लोग भी उनके साथ मिल गए. The soldiers gathered around the Red Fort and demanded to meet Bahadur Shah Zafar. The emperor was reluctant to challenge the might of the British, but he was prevailed upon by the soldiers. तो सोल्जर्स लोग क्या किए और महल के अंदर गए और बोले कि हमारे राजा को, ये हमारे लीडर है, इनको छोड़ो. फिर इनको छोड़ा गया. Then Zafar had no choice but to accept this demand. लोग ना फिर बहादुर शाह जफर सेकंड से बोले कि आप हमारे ये जो फ्रीडम फाइटिंग है इसमें आप हमारे लीडर बनो. तो बहादुर शाह जफर के पास कोई और बहुत मना किया. फिर लास्ट में उनके जो डिमांड है, उनके जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिए. He wrote letters to all the chiefs and rulers of the country to come forward and join him in forming a confederacy of Indian states to fight the British. और उनका जो ये स्टेप है उस पर उसका गहरा असर पड़ा. It is important to remember that the Mughal dynasty had ruled over a very large part of the country for a long period. बहुत सारे स्मॉल रूलर और सरदार जो क्या थे उन लोग मुगल रूलर के अंडर में अपने अपने जगह में रूल करते थे. They hoped that if the Mughal ruler could once again regain power, they would also be able to rule their own territories once again. The British had initially treated the revolt at Meerut quite lightly. लोग seriously नहीं लिए. But the decision by Bahadur Shah Zafar to support the rebellion had dramatically alerted the entire situation. जो बहादुर शाह जफर एक बहुत बड़े लीडर के रूप में रिबेलियन के लिए आए तो इसका असर रिबेलियन पर बहुत ज्यादा पड़ा. People were emboldened by an alternative possibility. Okay student, I think now you have understood the points.